Hello everyone, welcome back to the class of Physics by Sachin sir, the finest and the easiest way to learn the concept. So here is another video lecture from the chapter System of Particles and Rotational Motion. This class is all about derivation, and in this class we will see the calculation of moment of inertia of rod as well as disc. So please watch this video till the end to learn the whole concept. Let's begin the class by recalling the previous lecture. In all my previous video lectures of this series of 11 science, we were discussing on how to calculate the center of mass in video lecture number 1, and then also we were dealing with how to compare this chapter with the previous chapter of linear motion, because ये बहुत ही important है कि how you are doing comparison with the concept of linear motion and you are connecting that with this chapter of rotational motion, because if you know about velocity, easily you can be able to understand the concept of angular velocity. See, the difference is only rotation and there is linear. So it is very important to compare the concept of this chapter with the previous chapter. Another example, you can take another example. In linear motion, we can say there is force which displaces the body, and in this chapter there is torque which rotates the body. There is mass. Here we have in this chapter inertia. So it is very important to compare this chapter. So in case if you have missed the previous video lecture number 1, 2, 3, 4, 5, 6 of this series, do one thing, subscribe my channel and visit to playlist of it, where you can see there is a concept of rotational motion. You can go through that and you can visit, as well as you can watch, as well as you can enjoy all the video lectures of this chapter. And also there is the complete package of 12 science. So if you are the student of 12 science, you can watch all those previous lectures of 12 science. Let's begin the class, and before I start my class, would like to say one thing. Please don't go for the ratification, and many videos I start with this sentence because मैं नहीं चाहता हूँ कि आप फिजिक्स को सिर्फ रटिफिकेशन के साथ करो, बिकॉज सी फिजिक्स इज़ अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट जिसमें आपको खुद को इन्वॉल्व करना है. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपने पढ़ लिया, फॉर्मूले याद कर लिए, न्यूमेरिकल घिस लिया. इट इज़ नॉट लाइक दैट. एटलीस्ट यू हैव टू फील द कॉन्सेप्ट. You should connect your derivation, or you should connect your problems, numericals, with the daily life example. For example, if I say moment of inertia, instantly आपके माइंड में एक इमेजिनेशन हो जानी चाहिए कि हाँ यार, अगर moment of inertia है तो ऐसा ही कुछ सीखा था हमने. So it is the kind of subject कि जब you start learning the physics by clearing the concept of it, 100% इश्क हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगा, and completely you will fall in love with the physics. Okay, so be ready to fall in love with the physics. Let's start the derivation. Let's see कि how to calculate the moment of inertia of a rod. So एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आई थिंक यू शुड वॉच द प्रीवियस वीडियो लेक्चर. उसके लिए आप स्क्रीन पे कहीं पे भी टैप करो, या फिर रोटेशनल मोशन का डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख लीजिए, या फिर मैंने आपको पहले ही कहा कि प्लेलिस्ट में है तो उसमें वीडियो लेक्चर्स नंबर्स दिए हुए हैं. जैसे ये वीडियो लेक्चर नंबर माइट भी 6 और 7 होगा, मैं भी भूल गया हूँ. तो इसके पहले का वीडियो लेक्चर देख करके फिर आप यहाँ पर आओ तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा, राइट? क्योंकि डायरेक्टली आप कैलकुलेशन करने यहाँ सीखोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. First of all, learn what is moment of inertia, then come to this video. It will help you a lot. So let us see how to find moment of inertia. Keep one thing in your mind: moment of inertia plays the same role as the mass plays in your linear motion. ठीक है, जैसे linear motion में mass होता है, वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाता है हमारे लिए moment of inertia. So let's focus on the diagram. Here you can see in the diagram we have a rod, right? And the length of that rod is taken as capital L. Now I have to rotate this rod from the center point, and the axis which is perpendicular to the rod, which is perpendicular to the length. बच्चा पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रॉड को कैसे घुमा रहे हैं, क्योंकि रॉड को हम ऐसे भी घुमा सकते हैं. देखिए आप इस बात को समझिएगा, रॉड को हम ऐसे भी घुमा रहे हैं, और ये जो मैं घुमा रहा हूँ ये किस एक्सिस के अराउंड में घुमा रहा हूँ. सो for this example, the rod is rotating about the axis which is passing through its center and parallel to its axis. But ये situation अभी मैंने अप्लाई नहीं की है. Right now the situation is you have to rotate the rod, right, about the axis which is perpendicular to its length. जैसे कि इस डायग्राम में है और इस एग्जाम्पल में भी यू कैन फील इट. आप फील कर सकते हो इस बात को कि अगर ये रॉड की लेंथ है तो मुझे कुछ इसे इस तरह से रोटेट करना होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये ऐसे. अब देखिए क्या हो रहा है कि जब ये ऐसे रोटेट हो रहा है तो एक्सिस तो इधर है, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड.
राइट आप इसे ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, लेकिन जब आप ऐसे रोटेट करेंगे तो इसकी एक्सिस इसके अराउंड में हो जाएगी, आपके तरफ आ रही है। दोनों कंडीशन सेम है, आपको जैसे इमेजिन करना है वो करो, बट ऐसे नहीं करना है, क्योंकि जब आप ये कर दोगे तो ये जब रोटेशन हो रहा है, सो दिस रोटेशन इज व्हाट अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर लाइन, विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर लाइन एंड पैरेलल टू इट्स ऑन एक्सिस। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट केसेस है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वी हैव। ओके, कोई भी डेरिवेशन मैं बोलता हूँ फिजिक्स में, कोई भी डेरिवेशन उसमें 3 मेन पॉइंट होता है। फर्स्ट पॉइंट, हाउ यू स्टार्ट योर थियरी। सेकेंड पॉइंट, कि आपको उसके कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि इसमें मेन पॉइंट क्या है। जैसे पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है कि I इज इक्वल टू mr² m1r1² प्लस m2r2², प्रीवियस वीडियो, राइट। और थर्ड पॉइंट है कि उसका एंडिंग कैसे करना है, लास्ट में हमारा आंसर किस तरह से हमें मैनेज करना है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स जिन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है कि सर हम कर नहीं पाते, तो उनके लिए एक सिंपल सा फंडा ये है कि वीडियो देखने के बाद वीडियो को रोक दो, कहीं पर भी आपको समझ में एक बार आ जाए तो रोक दो, फिर मोबाइल साइड कर दो, या फिर आप लैपटॉप कहीं पे भी देख रहे हो तो साइड करो, और एक बार बिना देखे हुए जो भी मैंने डेरिवेशन किया है उसे अपने नोटबुक में राइट करो। प्रॉब्लम आए तो फिर देख लो। ऐसे आप तब तक करते रहो जब तक कि पूरी तरह से आपका डेरिवेशन कंप्लीटली आप बिना वीडियो को वॉच किए देख ना पाओ, राइट। इससे 2 फायदा होगा, एक तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस इंप्रूव हो जाएगी, राइट, और दूसरा ये होगा कि आपको समझ में आने लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर है, कहाँ आप फंस रहे हो। सो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरी उन स्टूडेंट्स के लिए जो डेरिवेशन को भूल जाते हैं। अब चलिए, मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं ले सकता, सीधा मैं डेरिवेशन पे आता हूँ। मैंने आपको पहले कहा कि रॉड है, लेंथ L है, ये जो ब्लैक वाली लाइन आप देख रहे हैं इसके अराउंड में ये इस तरह से घूम रहा है। डेरिवेशन को स्टार्ट करने का मतलब है कि स्टार्टिंग में यू हैव टू टेक अ डिस्टेंस x। वाई आई एम टेकिंग डिस्टेंस x? बिकॉज मुझे इस रॉड के बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट लेने हैं। देखो फिजिक्स में क्या होता है कि ना, ऑलवेज यू हैव टू टेक अ स्मॉल एलिमेंट एंड दैट स्मॉल एलिमेंट इज काइंड ऑफ dx। जो बच्चे फर्स्ट टाइम में प्रॉब्लम है तो उन्हें याद रखना है L इज द कंप्लीट लेंथ एंड इफ देयर इज dl दिस इज स्मॉल लेंथ, लेंथ का छोटा सा भाग। डिफ्रेंशिएशन का मतलब ही होता है स्मॉल पार्ट। डिफ्रेंशिएशन वर्ड आप सुने होंगे, 11 के स्टूडेंट हैं, और इसी का थोड़ा सा अपोजिट होता है वो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में सबका प्लस करना होता है एंड फॉर डिफ्रेंशिएशन यू हैव टू डिवाइड द पार्ट्स, राइट। तो व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, सिंपली आई एम टेकिंग डिस्टेंस x फ्रॉम दिस सेंटर लाइन एंड आई हैव टेकन अ स्मॉल एलिमेंट हैविंग लेंथ dx, and if I am taking the length dx, the mass for that small element will be the small mass dm, क्योंकि लेंथ dx है तो मास भी क्या होगा, dm होगा। वैसे अगर पूरा L लेंथ का रॉड है तो कंप्लीट मास इसका कैपिटल M है, लेकिन अगर स्मॉल एलिमेंट है dx तो फिर उस dx के लिए मास भी कितना है, dm। एंड फिर से मैं आपसे पूछता हूँ कि ये dm सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, तो बच्चा पार्टी वो डिस्टेंस है x, राइट। अब इस रॉड का लेंथ कैपिटल L, मास कैपिटल M, बट dx लेंथ के लिए मास dm है। तो इस तरह के सिचुएशन में ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर 3 कांस्टेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी मैं अपने क्लास में स्टूडेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ इस लेक्चर का, तो उन्हें हमेशा ये 3 फैक्टर्स के बारे में डिटेल में पहले से ही बता देता हूँ। एक लैम्बडा होता है, दूसरा सिग्मा होता है और तीसरा होता है रॉ। जब भी आप कभी भी मास लेंथ का क्वेश्चन करो या फिर मास एरिया का क्वेश्चन करो या फिर मास वॉल्यूम का क्वेश्चन करो, देन ऑलवेज यू शुड फोकस ऑन दिस 3 टर्म्स। ये क्या है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर रेशियो में मैंने L लिखा, रेशियो में एरिया लिखा, रेशियो में V लिखा, और यहाँ पे आई हैव टू राइट M एज वेल एज आई हैव टू राइट M। दिस इज नथिंग बट दिस इज अ काइंड ऑफ फैक्टर विच टेल्स यू कि फॉर अ गिवन लेंथ वी हैव अ मास। रॉड में अगर मैं बोलूं कि 2 मीटर की लेंथ में 4 किलोग्राम का मास है तो लैम्बडा कितना हुआ, 4/2, इट इज 2। अगर 2 मीटर में 4 किलोग्राम है 4 किलोग्राम, तो 4 मीटर में 8 हो जाएगा। एंड एट द एंड व्हेन यू डिवाइड 8/4 और व्हेन यू आर डूइंग 4/2, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, 8/4, 4/2, you are getting the same answer and that same answer is that constant value lambda। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो चेंज नहीं होगा। आपको ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा कि इस लेंथ में इतना मास है इस सिस्टम के अंदर। जैसे एक क्लासरूम है,
उस क्लासरूम की कैपेसिटी है 50 लीटर की, 50 लीटर की, और यू कैन से 50 मीटर क्यूब क्योंकि नंबर आ गया, और उसमें स्टूडेंट भी 50 बैठते हैं, तो उसकी डेंसिटी कितनी हुई? 50/50 इट इज़ 1, और वो चेंज नहीं होगी. इट्स अ काइंड ऑफ कांस्टेंट पैरामीटर्स. बट यू हैव टू फोकस कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लेंथ you should use lambda. When you are talking about surface, you should use sigma. And when you are talking about 3D picture volume, तो ये डेंसिटी. अच्छा, इनमें से डेंसिटी तो आपको पता ही है, डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम. तो ये भी डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है, बट इसे हम कहेंगे LMD, लीनियर मास डेंसिटी. हियर दिस इज कॉल्ड SMD, सरफेस mass density, and this is normal volume mass density, or you can say only density. तीनों में कॉमन ये है कि आपको मास का कैलकुलेशन करना है, लेकिन मास इतने लेंथ में है, लैम्बडा है, लीनियर मास डेंसिटी. मास इतने एरिया में है, तो वो हमारे लिए SMD है, सरफेस मास डेंसिटी. मास वॉल्यूम में हम मेजरमेंट ले रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल वॉल्यूम डेंसिटी. गॉट इट? सो हियर we will use which factor? Lambda. Why? Because हमारे टास्क में क्या है? लेंथ है. So I am going to start with the simple parameters of lambda and I can write. चलिए मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, तो इससे आपको थोड़ा सा मज़ा भी आएगा. अरे वाह, क्या कलर है! मास पर यूनिट लेंथ, ये हमने एज्यूम किया कि मास पर यूनिट लेंथ लैम्बडा है, राइट? सो लैम्बडा इज इक्वल टू M/L. बच्चा पार्टी, आप कॉन्सेंट्रेट करो, ध्यान से समझो कि मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर डेरिवेशन आपके लिए एकदम मतलब मज़ा आ जाएगा यार. ठीक है, फिर ऐसे आप 2-3 और डेरिवेशन कर पाओगे खुद से. यहाँ से देखिए M को सब्जेक्ट बनाया, जस्ट फोकस ऑन द स्टेप आई एम डूइंग. M इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू L. नाउ आई विल कंपेयर दिस इक्वेशन विथ माई डायग्राम. तो मेरे डायग्राम में मास जो है वो स्मॉल एलिमेंट का dm है, ये तो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है M/L. एंड इफ आई टेक M as dm, then I should take L as what? dx. See, dm मास के लिए लेंथ स्मॉल था और वो dx है, राइट? जैसे ही तुम्हें dm मिल जाएगा, then you can calculate मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नॉर्मल इक्वेशन क्या है? तो नॉर्मल इक्वेशन है I इज इक्वल टू mr². ऐसे तो है m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3² प्लस mnrn². बट अगर एक कंप्लीट शेप है तो I इज इक्वल टू mk², जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था. व्हाट वाज k? दैट वाज रेडियस ऑफ gyration, प्रीटी सिमिलर टू योर रेडियस, बट दैट रेडियस ऑफ gyration इज ऑलवेज यूज्ड इन रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट. बट अभी मैंने mr² क्यों लिखा? क्योंकि ये जो स्मॉल एलिमेंट है वो नॉर्मली एक पार्टिकल है, वो कोई कंप्लीट शेप नहीं है, राइट? इसीलिए I इज इक्वल टू mr². अब जैसे ही मैंने I इज इक्वल टू mr² लिखा, तो मास इज गोइंग टू कन्वर्टेड एज dm. फिर देखिए ये जो r है दैट इज द डिस्टेंस फॉर दैट मास. अगर dm लिखा तो ये dm कितने डिस्टेंस पे है? दैट इज द डिस्टेंस ऑफ x². ऑलराइट, अगर मास स्मॉल एलिमेंट है तो इनर्शिया भी डायरेक्ट नहीं मिलेगा, दैट इज di. सी स्टूडेंट्स, what you have to do, you have to focus and you should keep all these things in your mind कि कैसे मैं स्टार्ट किया हूँ डेरिवेशन और मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, उन चीज़ों को माइंड में बिठा के रखो, बहुत आसान होगा आपके लिए. इनर्शिया di इसलिए बना क्योंकि मास dm है, दैट्स इट. अगर हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे अगर मैंने लिखा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट dx है, तो तुम्हारा वर्क भी स्मॉल मिलेगा, dw. ऑलराइट, नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ दैट dm. So di is equal to, here we have dm is what? M/L, then that x² और ये वाला dx. You cannot write x का क्यूब. तो अब di मिल गया, di से i पे जाना है तो you should do इंटीग्रेशन. अब ये चैप्टर स्टार्ट कर चुका हूँ तो आप लोग इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं. समझ में भी आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा फर्स्ट टाइम है तो ये चीज़ें कुछ याद रखो कि dx, dy, dz कहीं पर भी है, इसका इंटीग्रेशन z हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन y. इट्स अ रूल, नॉर्मल मैथमेटिक्स है. तो अगर मेरे पास di था, मुझे i पे जाना है तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. जैसे dx का इंटीग्रेशन करके x आया, वैसे इंटीग्रेशन di दैट इज कॉल्ड योर i, इनर्शिया, कंप्लीट इनर्शिया ऑफ द गिवन पैकेज, गिवन बॉडी. सो हियर आई हैव द वैल्यू ऑफ di विच इज
m upon l, then we have x square and then we have dx. ओके, अब इंटीग्रेशन करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि व्हाट इज द टर्म ऑन द राइट साइड ऑफ डी. डी के राइट साइड पे जो टर्म्स है ना बच्चा पार्टी, वही टर्म्स का इंटीग्रेशन होगा, बाकी सारे कॉन्स्टेंटली बाहर आ जाते हैं. ये मेरा आसान तरीका है समझाने का भी और समझने का भी, आपको भी इसमें समझ में आ जाएगा. चीज़ों को ध्यान रखो. सिर्फ मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन जब भी करो तो हमेशा आपका कोई भी करो, मैथ्स के स्टूडेंट हो कोई भी हो, ये चीज़ बहुत ही ईजी है और आपका बहुत हेल्प करेगा. डी के राइट साइड में एक्स है तो ये भाई साहब उसके रिलेटिव है अंदर, बाकी उसके कंपेरिजन में m अपॉन एल ये बाहर चला जाएगा. सो नाउ इट इज़ m अपॉन एल, रिमेनिंग टर्म्स है एक्स स्क्वायर और फिर dx. इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट इंटीग्रेशन का. फिर से d के राइट साइड में x है तो लोअर लिमिट हुआ -l/2 और अपर लिमिट हुआ l/2. अरे क्वेश्चन आ गया तो कि सर कहाँ से आ गया -l/2? तो देखो ये जो x था पूरे रोड को अगर आप ऑब्जर्व करो, पूरे रॉड को, तो l/2 इस साइड है और इस साइड भी l/2 है. बट ये सेंट्रल में होने की वजह से ये जो रॉड का लेंथ हुआ माइनस और ये रॉड का जो लेंथ हुआ वो क्या होगा प्लस. तो लोअर लिमिट का मतलब डी के राइट साइड में x जो था वो सबसे कम कितना हो सकता है, तो -l/2. इधर का कवर हुआ, उस साइड का भी कवर होना चाहिए. सी ऐसे तो बहुत बार इंटीग्रेशन आपके सामने आएगा एंड एवरी टाइम आई विल एक्सप्लेन, बट आई थिंक यू शुड keep this thing in your mind कि what I am explaining for this type of integration. Whenever you are taking limit, your complete body or your complete given object should be covered. पूरा कवर होना चाहिए. x बीच में था, बीच से लेके मैं इधर गया तो मैं इधर जाऊंगा तो -l/2, लोअर लिमिट माइनस में है और अपर लिमिट क्या हो जाएगा +l/2. ओके, आफ्टर दैट द फाइनल आंसर इज whatever the power of x square, the result is like power +1 and the same power is your denominator. It's a rule. जैसे यहाँ पावर 2 है तो 2 + 1 3 और वही डिनोमिनेटर भी बनता है. ये आपका फाइनल आंसर हुआ इंटीग्रेशन का. इंटीग्रेशन हटा, इसका पूरा इसके जगह पर ये रिजल्ट आता है, राइट. एंड एट लास्ट I can take that 3 as constant, numeric constant, so you can keep that 3 outside of that box. So m upon 3l. Now we have x का cube -l/2 and then l/2. बच्चा पार्टी इंटीग्रेशन है. इसका लास्ट प्रोसेस क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल for that x you have to take l/2 and then minus the lower limit. तो m upon 3l ब्रैकेट बनाया, इस x की जगह पर मैंने लिखा l/2 क्यूब किया, फिर फॉर्मूले का माइनस, इट्स लाइक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फिर x की जगह पर लोअर लिमिट में है -l/2 का क्यूब. आई होप आपको समझ में आ रहा है. नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को रोक करके फिर से देखना कि मैंने क्या बोला है. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो नाउ इट इज l³ upon 8 and then plus l³ upon 8, right? l³ upon 8, l³ upon 8, it is going to convert as 2l³ upon 8. इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा ml² upon 12. तो दिस इज the very important equation and this is used to calculate the moment of inertia of a rod of length L having mass capital M. किसी भी रॉड का अगर आपके पास में मास है, आपके पास में लेंथ है, तो ईजिली आप उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर सकते हो. तो ये था डेरिवेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड. ये पॉइंट भी मैंने लिखे हैं तो आज थ्योरी में आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए. इस तरह से थ्योरी को हमेशा स्टार्ट करना होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन. सो टेक अ स्क्रीनशॉट, then we'll come and then we'll discuss how to calculate the moment of inertia of a disk with smiley face. Okay, take a screenshot. ऋतिक रोशन की आवाज़ में बोले, ठीक है. अरे वाह, तुम लोगों ने तो ये भी सीख लिया. मुझे तो स्कूल में सिखाया ही नहीं गया था, मुझे नहीं पढ़ना है. चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं टाइम पास ज़्यादा नहीं कर सकता, मुझे नहीं सिखाना है. अरे सॉरी, सिखाना है. अरे वाह, आ गए सब लोग. ओके. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क के लिए तैयार हो जाओ. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, पहले सोचो डिस्क क्या होती है. पिज़्ज़ा खाया होगा ना आप लोगों ने. मेरे स्टूडेंट लोग ही मुझे एग्जांपल देते पिज़्ज़ा, वरना मैं तो एग्जांपल देता था कि जिस पे मम्मी रोटी बनाती है वो
वो एक तरह का डिस्क है, या फिर जो सीडी होती है वो भी डिस्क है। देखिए मैंने, मम्मा ने मेरी हेल्प भी की है और मुझे ला के दिया है। देखिए ये सर्कुलर प्लेट है 100%, बट जब आप इसे साइड से देखेंगे ना तो इसकी कुछ थिकनेस भी होगी। दिस इज़ कॉल्ड डिस्क। डिस्क में थिकनेस भी होता है, ये थिकनेस, और सामने से पूरे सर्कुलर प्लेट का होता है। सर्कल अलग है, स्फीयर अलग है, ये डिस्क है। मतलब अगर आप सामने से देखेंगे तो इसके पास में ये ऐसे एक लेयर होगा। तो ये डिस्क अगर इस तरह से ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है, तो मुझे जो इनर्शिया फाइंड करनी है वो इसके सेंटर से गुजर रहा है एक्सिस, ये सेंटर से गुजरा एक्सिस, और ये इस तरह से रोटेट हो रहा है। मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। सो वी आर गोइंग टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ इट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन रोटेशन ऑफ द प्लेन। गॉट इट ना? समझ में आ गया? धन्यवाद, भगवान आप सभी का भला करे। ठीक है, तो कुछ भी लेना पड़ता है यार हमें एग्जाम्पल में। अब उसका फ्रंट व्यू देखो तो डायरेक्टली यार आपको कुछ मिलेगा नहीं, डायरेक्टली कुछ मिलता नहीं है। तो फिजिक्स में क्या होता है, मिलता नहीं है डायरेक्ट ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो मम्मी मारेगी भी आज मुझे। यहाँ से मैं ये पूरा ये रेडियस आर, डायग्राम में भी देखो रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि इसके सेंटर से हम एक डिस्टेंस कंसिडर किए, दैट इज़ आर, दैट इज़ डिस्टेंस। सेंटर से आर जितने डिस्टेंस पर गए और ये हमने एक शेप कंसिडर किया, और ये वाला शेप का जो आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड योर थिकनेस, मोटाई। वो थिकनेस स्मॉल है dx, क्योंकि जब कैपिटल आर था तो कैपिटल आर के लिए तो एरिया क्या होगा, मेरी बात समझिए प्लीज। कैपिटल आर रेडियस है तो एरिया पाई आर स्क्वायर है इस डिस्क का। बट जब हम आर जितने डिस्टेंस पर गए तो एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर नहीं होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर आप कह सकते हो, लेकिन पाई आर स्क्वायर सिर्फ इतने पार्ट का हुआ। आपको चाहिए इस कंप्लीट शेप का। थोड़ा कंफ्यूज हो गए ना आप? टेंशन मत लो, मैं समझाता हूँ। बट ये डायग्राम उठाने का, ये इस तरह से दिखाने का मतलब कि आप इमेजिन कर पाओ कि डिस्क है। थोड़ा कन्फ्यूजन अगर आया तो मैं उसे क्लियर करता हूँ, डोंट वरी। सी द डायग्राम। कैपिटल आर इज द मेन रेडियस. What I have to do, or you have to do, take a small distance, a small r from the center of it, and take a small element, a small thickness of that plate having thickness dr, और उस dr जितने थिकनेस के अंदर का जो मास है वो है dm। जैसे पहले के डायग्राम में dx था तो मास क्या हो गया था dm। बट यार जो पहला वाला डायग्राम था ना उसमें लेंथ थी आपके पास, इसके पास में क्या है, इसके पास में सरफेस है, एरिया है। तो यू शुड स्टार्ट विद दिस के मास पर यूनिट एरिया। सो दिस इज सिग्मा, जैसे हम कहते थे एस एम डी, है ना बच्चा पार्टी, एस एम डी सरफेस मास डेंसिटी। सो एम अपॉन ए। नाउ एम, व्हाट अबाउट एरिया, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कंप्लीट पहले, मेक एम सब्जेक्ट, सो एम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। टास्क से कंपेयर करो। आप अगर बहुत ध्यान से लेक्चर देख रहे हो, पूरी तरह से एकदम कंसंट्रेशन किया है, तो आप देखोगे कि मैं वही स्टेप को फॉलो कर रहा हूं जब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड के कैलकुलेशन में किया। सो एम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, दैट मास इज डी एम, सिग्मा कॉन्स्टेंट, दैट इज एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, एंड एरिया आई शुड राइट 2 पाई आर एंड देन डी आर। नहीं आया तो चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ए को तो डी ए लिख सकता हूँ ना, जैसे वहाँ पे डी एक्स था वैसे डी ए। सो डी एम इज इक्वल टू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, एंड नाउ आई कैन राइट एरिया एज लेंथ इंटू ब्रेथ। नो, नॉर्मल इक्वेशन एरिया का तो यही होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या होगा, तो जब आपके पास में रेडियस आर है तो लेंथ सरकमफेरेंस के बराबर हुआ 2 पाई आर, और जो ब्रेथ यानी उसकी जो मोटाई है इसकी, तो उसकी मोटाई है डी आर, तो 2 पाई आर डी आर। ये एक तरीका है, आसान तरीका समझने का। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो एक और तरीका है मेरे पास कि मैंने कैसे एरिया को 2 पाई आर डी आर में कन्वर्ट कर दिया। कैसा डायग्राम बना रहा हूँ मैं, चलिए देखिए। ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो पाई का कुछ नहीं, डिफ्रेंशिएशन में पावर फॉरवर्ड हो जाता है, सो इट इज़ 2r। मेक डी ए सब्जेक्ट, सो डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एंड देन डी आर। अब इतना बड़ा करने से अच्छा भैया सीधा सीधा लेंथ और ब्रेथ का फॉर्मूला याद रखो, 2 पाई आर इंटू डी आर। कुछ कैंसिल हो रहा है तो यू कैन कैंसिल इट, दैट इज पाई से पाई का कैंसिल हो जाना। तो नाउ वी हैव
डी एम इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ओके, आर स्क्वायर, देन 2, चलिए ठीक है 2, फिर आर डी आर, ओके, आर डी आर. After getting the value of a small element of mass, you can calculate inertia I is equal to mr square. But if you take mass as dm and what is the distance of dm, ask yourself, खुद से पूछो कि ये जो dm है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है r, तो यहाँ पे r स्क्वायर. बट अगर ये dm हुआ सो दिस इज योर di. Now di is equal to dm, place the value of dm. What is the dm? Yes, 2m r dr upon capital R square. This is all about dm and there is r square, ये वाला r square, ठीक है. So now we have r square as well as r, 2m r cube dr and then r square, this is di. And to get the value of complete inertia you should do integration. चलिए तो इंटीग्रेशन कर देते हैं. और इंटीग्रेशन में मैंने आपको क्या बताया कि कौन बाहर जाएगा कैसे पता चलता है, तो ऑलवेज ऑब्जर्व द राइट साइड ऑफ दैट डी, देयर इज अ स्मॉल आर, तो ये भाई लोग सिर्फ अंदर होंगे एंड दिस 2m अपॉन आर स्क्वायर विल बी आउटसाइड ऑफ दैट इंटीग्रल पार्ट. सो नाउ 2m अपॉन आर का स्क्वायर इंटीग्रेशन आर क्यूब एंड देन डी आर. इसको क्या कहते हैं? लोअर लिमिट. This one is upper limit. And how to take lower limit and upper limit? Your complete body should be covered. जैसे ये था C, D के राइट साइड में स्मॉल r है. स्मॉल r शुरू कैसे हुआ? इधर से, सेंटर से. When we were here, अरे भाई तो बहुत बढ़िया आवाज़ है. Yes. तो जब ये तुम इधर गए थे, सेंटर पे थे, तो r कितना है? 0. सेंटर से सेंटर पे ही हो तो 0 डिस्टेंस है ना. फिर आप चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए इधर आ गए, तो अब कितना हो गया आपका डिस्टेंस सेंटर से? रेडियस के बराबर. तो इसका जो लिमिट होगा भैया वो होगा 0 से कैपिटल R. एंड व्हाट इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दैट इंटीग्रेशन r क्यूब dr? तो as I have already explained, whatever the power, add 1 and same will be the denominator. So this is now r4 upon 4, देखो यहाँ लिखा 0 से कैपिटल R, r cube r4 by 4. So now it is m upon 2r square, कट किया 2 से 4 को, place r as upper limit, r4 minus 0. तो अब आप r स्क्वायर से उसको भी कैंसिल कर सकते हो. तो लीजिए एक और इनर्शिया आ गई, बहुत मस्त वाली. तो I is equal to mr square by 2. अब बच्चा पार्टी इन दोनों फॉर्मूले को अपनी मेमोरी कार्ड के अंदर स्टोर कर लो, क्योंकि नीट की एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो, JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ इनर्शिया, बिकॉज देयर इज सो मैनी इक्वेशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये तो शुरुआत है, डरने की ज़रूरत नहीं है, सब आएगा. ऑल यू हैव टू डू, फील द फिजिक्स, ओके, लव द फिजिक्स. पागलपंती है ना, पागलपंती के साथ पढ़ने का और पढ़ाने का मज़ा ही कुछ और है. वैसे भी रात के 12-1 बजे शूटिंग करता हूँ ना, तो जब पागलपंती चढ़ी रहती है ना तो ही मज़ा आता है. ठीक है, अभी तो आप लोग सो रहे होंगे, कुछ लोग जाग रहे होंगे, सुबह में वीडियो मिलेगी आपको. चलिए, तो ये सिचुएशन तो हो गई यार. अब थोड़ी सी और मैं बातें कर लेता हूँ कि रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे निकालते हैं. तो सिंपली देखिए, आज का जो डेरिवेशन था वो था एक रॉड का और दूसरा है डिस्क का. रॉड के लिए तुमने निकाला ml²/12, डिस्क के लिए तुमने निकाला mr²/2. कभी भी रेडियस ऑफ जायरेशन का कैलकुलेशन आए तो इनर्शिया का कंपेयर करना है mk² के साथ, क्योंकि mk² ही तो मेन फार्मूला है इनर्शिया का, ये भी mk². तो यू कैन सी मास एंड मसवा कैंसल, मसवा एंड मसवा कैंसल. तो फाइनल आंसर इज लाइक हियर k इज इक्वल टू L अपॉन 2√3. मैं नहीं बताना, सोच लो कैसे है 2√3. और इधर k इज इक्वल टू R अपॉन √2. सो दिस इज ऑल अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन. रेडियस ऑफ जायरेशन थारे को याद करने की जरूरत ना है छोरा, ये छोरी. ठीक है, थारे को फॉर्मूला याद रखना है इनर्शिया का. एट द एंड थारे को कंपेयर करना है इनर्शिया को mk² के साथ. इजीली थारा आंसर आ जाएगा.
चलिए, तो अब हमारे जाने का समय हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट उससे जाने से पहले यार क्या कहूँ, कुछ अल्फाज मेरे पास नहीं हैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सचिन सर को कितने लोग नफ़रत करते हैं, क्योंकि है अभी भी कुछ कमेंट आ जाते हैं जिससे माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। बट फिर मैं अपने आप को स्टेबल कर लेता हूँ, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं मैंने, अभी कुछ बताया नहीं है। धीरे धीरे हमारी ये जो फैमिली है, रिश्ता है, प्यार है, मोहब्बत है भाई बहन का, और एक आप मुझे अपना दोस्त समझिए, टीचर समझिए, अपना बड़ा भाई समझे, जो भी आप समझे, आप लोगों का जो प्यार है मैं उसे फोकस करता हूँ। कभी कभी कुछ लोग हैं जो नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं, अजीब तरह के कमेंट करते हैं, बातें करते हैं, तो उससे थोड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि यार मैं ना ऐसा सोचता हूँ, जो मैं अपने बच्चों को कहता हूँ जो ट्यूशन में आते हैं, अगर वो वीडियो देखेंगे तो ज़रूर बोलेंगे कि सचिन सर ने ये बोला। देखो, अगर आप भी किसी चीज़ से कभी परेशान होना ना, तो ये ज़रूर सोचना कि आप अकेले नहीं हो। दुनिया में बहुत लोग हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और उनमें से सभी लोग आपको प्यार करें ज़रूरी नहीं है। अगर 100 लोग हैं आपके आसपास में, तो 99 आपको नफ़रत करेंगे, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन वो एक बंदा ही आपसे इतनी सच्ची मोहब्बत करता होगा, इतनी शिद्दत से मोहब्बत करता होगा कि वो 99 लोगों पर भारी पड़ जाएगा। तो मेरे पास भी जो अभी ये फैमिली है यूट्यूब चैनल पर, उनमें से आप में से कोई एक बंदा भी मुझसे अगर दिल से प्यार करता है ना, तो वो मेरे लिए यार बाकी न जाने कितने लोगों की नफ़रत पे भारी पड़ जाएगी। सो मैं दिल से आप लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। इतना प्यार, इतना मोहब्बत देने के लिए। आप वीडियो अगर शेयर करते हैं, एक भी शेयर करते होंगे, किसी एक लड़के को या किसी एक लड़की को भी मेरे फिज़िक्स पढ़ाने से फ़ायदा मिलता होगा, तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनकी दुआएं मुझे मिलती हैं, बस मुझे इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। आपका प्यार है जो मुझे इतनी रात को जगाता है, जगा कर रखता है, और मैं वीडियो शूट करता हूँ। मेरा टारगेट है कि फ़िज़िक्स आपके लिए बस आसान हो जाए, फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट आए, मार्क्स के पीछे मत भागो। देखो, हर कोई बंदा मार्क्स के पीछे भाग रहा है, कोई मतलब नहीं है मार्क्स के पीछे भागने का। फिज़िक्स का मज़ा लीजिए, उसके कॉन्सेप्ट का मज़ा लीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम इतने अच्छे मोटिवेटर तो हैं नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट सब्सक्राइब माई चैनल अगर नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से बोल रहे हैं, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए, और इसी तरह से इस चैनल से फिजिक्स पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज़।